जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, मैनू आज्ञा दो कि मैं थोड़ा सत्संग शेयर कर सकां। गुरु महाराज जी, मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ, ਤਦੀ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਰ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ, ਜਲਦੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਪੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਉਸ 'ਚ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਬਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਂਟੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜਦ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਰੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਮੈਸੇਜ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਛੂਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸੋਰੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਤਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੱਪਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਤੈਨੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਓ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੂ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗਰਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਲਤ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਜਿਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਡਰ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਯੇ ਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰਾਂ, ਸਭ ਫਿਕਰਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग 23 नवंबर शनिवार के दिन का है। 23 नवंबर को मेरी बेटी का एग्ज़ाम था। जैसे कि मैं पहले भी बताती रही हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के पास रहते हैं, तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम था। मेरे हस्बैंड उसको लेके गए थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए। बेटा मेरा अकेला था घर में। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था अपने बेटे को जल प्रसाद वगैरह देने के लिए, गुरुजी का कुछ, तो मैं बेटे के पास गई, उनको नाश्ता कराया, लंच बनाया मैंने उनके लिए, और मैंने उनको देखा तो वह काफ़ी नेगेटिविटी में थे, बहुत असामान्य फील हो रहे थे मुझको। तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया और चंदन प्रसाद भी मैंने उनको दिया। फिर मेरे को घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी। मैंने जल प्रसाद से घर घर में छिड़के मारे, छींटे मारे मैंने। और मेरे बेटा पहले थोड़ा सा कुछ सही लग रहा था, लेकिन ये अभी जो दिक्कत हुई है वो 1-2 दिन पहले ही की गई है उसके साथ में, और वह काफ़ी नॉर्मल फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो मेरे को एक मौका मिला था उसको देने के लिए, तो मैंने इस मौके को गंवाना ठीक नहीं समझा। तो मैं गई उनके पास में, खाने पीने में मैंने जैसे कर सकती थी किया, मैंने उनको जल प्रसाद दिया। और शाम को मैं अपने घर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर आई। हर सैटरडे को मैं काली माता मंदिर जाती हूँ। मैंने माता के आगे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। मैं अपने बेटे को देखकर काफ़ी चिंतित थी। माता के आगे मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मेरे बेटे को ठीक कर दे। मैं अपनी बेटियों के लिए भी मैंने उनसे प्रार्थना की। मैं इस मंदिर में जब मेरा बेटा 2 महीने का था तभी से जा रही हूँ लगातार। मैंने वहाँ पर सभी के आगे दीपक जलाया। तो जब मैं हनुमान जी के आगे दीपक जला रही थी, हनुमान चालीसा कर रही थी,
तो मुझे एक समय ऐसा लगा जैसे गुरुजी वहाँ पर हैं, क्योंकि गुलाब की खुशबू चंद सेकंडों के लिए मुझे बहुत तेज वहाँ पे फील हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली, सुकून मिला। मैं फिर पूजा करके अपने घर वापस आई। मेरे घर के कुछ ही दूरी पर साईं बेला और माता की चौकी हो रही थी। वहाँ गई, आरती में शामिल हुई, आरती का प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेकर के अपने घर में आई। फ़ोन खोल के देखा मैंने तो बहुत से गुरुजी के बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। उनको देख के मन में बहुत राहत मिली। बहुत प्रसन्न मन से मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। सोने से पहले मैं ये करना चाहती थी, इसलिए मैं सोने से पहले ये कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग बाद में ही कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे सवेरे जल्दी उठना है संध्या वेले के लिए। कल मुझे ऐसा लगा शायद मेरी समस्याओं का मुझे समाधान मिल जाएगा और मुझे अपनी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति का रास्ता भी नज़र आने लगा। आज मैं बहुत शाम के समय काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए खुश मन से शुक्राना लिख रही हूँ। अभी मैं सत्संग का मैं ये शुक्राना अब मैं इसको मैं विराम देना चाहती हूँ और गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, जैसे मेरी परेशानी, मेरी अरदास आपने सुनी है, सबकी सुनिए और सबके कष्टों को दूर कीजिए। मेरे सत्संग को जो भी आगे शेयर करे, मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी उनके भी सारे कष्ट, उनके भी सारे दुखों को दूर कीजिए। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अंतनम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगतां जी, जय गुरु जी। गुरु जी चरण कमला च कोटि कोटि नमन गुरु जी। मैं अपना शुक्राना बोल रही हाँ गुरु पाजी, संगतां जी। मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर तो बोल रही हाँ। गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ लीला अपरंपार है मेरे गुरु पाजी। मैं 3 दिन ਦਾ ਛੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। 3 दिन ਦੀ ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। सब ਤੁਹਾਡੀ किरपा है गुरु पाजी। हे गुरु पाजी, मेरी हथ जोड़ बेनती है महाराज जी, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ।
मेरे पापा में मिल जाएंगे तो मेरा जीवन, पूरा जीवन मेरा सुधर जाएगा गुरु जी। मेरे जीवन दी हर मुसीबत आपे ही कट जानिया ने गुरु पापा जी। गुरु महाराज जी तुसी अनंत हो गुरु महाराज जी। तुसी मेरे भोले बाबा जी हो महाराज जी। तुसी दानी हो महाराज जी, दानी हो महाराज जी। हे गुरु पाजी, कल मेरे बच्चों की बड़ी लड़ाई हो रही सी गुरु पाजी, मेरी बहू दी, मेरे बेटे दी। मैं एक ही काम कर रही सी, खारे गुरु जी नू बुला रही सी, गुरु जी तुसी देख लो, गुरु जी तुसी देख लो। मैं मंत्र जाप करती जा रही सी गुरु पाजी। थोड़ी देर दोवे ठंडे हो गए ने महाराज जी। दूसरे दिन आपे ही दोनों प्यार ना गल करन लग गए ने महाराज जी। बस मैंने खाली आई चीज की टेंशन रही है गुरु पाजी। बच्चे आपस से प्यार करन, पोतरे नाल भी प्यार करन, पोतरा अपने माँ बाप नाल प्यार करे, अपनी दादी नाल प्यार करे, अपने रिश्तेदार नाल प्यार करन, आए गए दा मान सम्मान करन गुरु पाजी। हे गुरु पाजी, अपने बच्चे दी कारोबार से वध दे पाओ, उन्होंने इतना दियो गुरु महाराज जी, गरीबां दे सहाय बन सकन, कुत्तियां नू, गावां नू, पंछियां नू खाना दे सकन। ओदी चढ़दियां कला करो महाराज जी, अपने दोवे दोतरे दी चढ़दियां कला करो, दोतरी दी चढ़दी कला करो गुरु महाराज जी। मैं अड्डियां चुक चुक राह तकनी हाँ गुरु महाराज जी, कब मेरे प्यारे गुरु जी मेरे कोल आनगे, कब मैं दर्शन करांगी गुरु पाजी दा। मैं शांति नहीं मिलती है गुरु पाजी, मन बहुत चंचल रहता है गुरु पाजी, मन भटकदा रहता है सब समय गुरु महाराज जी। क्योंकि मैं तंदुरुस्ती नहीं है, मैं तंदुरुस्त नहीं रहनी, आलस दा बोरा बन गई हाँ, मेरे बच्चे भी आलस दे बोरे बन गए ने गुरु पाजी। मेहरां दे साईं मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। मैं फकीर हाँ गुरु महाराज जी, फकीरां दी बिनती सुनो, पुकार सुनो महाराज जी, अरदासा सुनो गुरु महाराज जी। सारी संगतां दियां भी अरदासां सुनो गुरु महाराज जी। सब दे घर खुशियां दियो, सब दे बच्चों नू बुद्धि दियो, ज्ञान दियो, पढ़ने दी विद्या बख्शो गुरु महाराज जी। हे गुरु पाजी, मैं तो आप जी की सेवा नहीं कर सक रही हैं गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं खुद तंदुरुस्त नहीं रहनी हाँ गुरु महाराज जी। 12 साल की तबीयत खराब रहती है गुरु पाजी। हे गुरु पाजी, मैं कभी अकेली हो गई है, मेरा कोई नहीं है, मेरे गुरु पा तो सिवा मेरा कोई नहीं है गुरु जी। मैंने अपनी चरनी ला लो गुरु पाजी, अपने बच्चों ने अपनी चरनी ला लो गुरु पाजी। इस असहाय नो अपना सहाय दे दो गुरु पाजी, अपने आप मेरे बाह फाड़ लो गुरु पाजी। हे गुरु पाजी, मैं सब संगदा को सुनती हाँ गुरु पाजी। गुरु जी ने मेरा बाह फाड़ ले, गुरु जी ने मेरा आशीर्वाद दिता, गुरु जी ने मेरे कारोबार च वाधे पाए, गुरु जी ने मेरी यह बीमारी दूर कर दी, गुरु जी ने मेरे घर शांति दी, मेरे घर है दिता, मेरे घर वो दिता गुरु पाजी। वही चीज मैं भी चाहनी हाँ गुरु पाजी, सब दे घर शांति रवे, कला कलेश ना रवे गुरु पाजी।
कलह कलेश तो बहुत डर लगता है गुरु पाजी। हे गुरु पाजी, मेहरां दे साईं तुसी मेहर कर दियो महाराज जी। इस गरीबन बच्चे उत्ते मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। हे गुरु महाराज जी, जब मेरे बच्चे किते जांदे ਹਨ मैं हर समय आई बोलनी हाँ गुरु जी तुसी नाल जाओ, गुरु जी तुसी नाल जाओ और तुसी नाल ही वापस आना है गुरु जी। गुरु जी औखी घड़ी कदी ना देखन दा जे महाराज जी। पहले ही मेरे हाथ तो मेरे थोड़ा एक दोतरा चला गया है, फिर मेरा पति चला गया है। बाकी जेड़े बच्चे ਹਨ गुरु जी मेहर भरिया हथ रखो, आशीर्वाद दो सारे बच्चों ते, आशीर्वाद दो जवाई ते आशीर्वाद दो, बेटी उत्ते आशीर्वाद दो, दोनों दोतरियां ਨੂੰ आशीर्वाद दियो, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆशीर्वाद दियो गुरु जी महाराज जी। गुरु महाराज जी मैं सत्संग बोलना नहीं आंदा है गुरु महाराज जी। मैं हमेशा याद करनी है कि मैं ए बोलांगी, मैं अकम बोलांगी, मैं अकम बोलांगी, अकम सत्संग बोलांगी मैं। गुरु जी मैं सब भूल जानी हाँ गुरु जी, क्योंकि हर समय मेरा दिमाग टेंशन च रहिंदा है गुरु पाजी। टेंशन भरिया दिमाग नाल मैं की सोच सकांगी गुरु पाजी, बहुत टेंशन रहिंदा है गुरु पाजी। एक मेरे घर गुरु पाजी सब दे सब आलसी महाराज जी, आलसी। ना कोई पाठ है, ना कोई पूजा है, ना कोई कुछ है, बस खाली झगड़ा ही झगड़ा है। गल गल ते झगड़ा है महाराज जी, गल गल ते झगड़ा। मैंने बिल्कुल पसंद नहीं है गुरु पाल जी, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं है। सब नु शांत करो गुरु महाराज जी, ठंडा करो गुरु महाराज जी। मैंने भी शक्ति दियो, तंदुरुस्ती दियो महाराज जी, मैं तुहाडी चरना दी सेवा कर सकां गुरु महाराज जी। सब दे अंग संग सहाय हो गुरु महाराज जी, सब दे अंग संग सहाय हो। हे गुरु पाजी, मैंने आप जी का स्वरूप किवें मिलेगा गुरु पाजी। मैं चरना का भी स्वरूप चाहिए, मैंने आप जी का भी स्वरूप चाहिए। मैंने किकन मिलेगा गुरु पाजी, संगता जी मैंने किकन मिलेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं सकती हाँ केड़ा मैसेज किदे वास्ते, किदे वास्ते मैसेज आया, किदे वास्ते नहीं आया, मैंने कुछ समझ नहीं आंदा गुरु पाजी। मैंने कुछ समझ नहीं आंदा क्या मैसेज किया, सच में कुछ कर भी नहीं सकनी है क्योंकि समझ नहीं आ रहा। करांगी मैं की करूँ गुरु जी। मेरे पिताजी, मेरे परमेश्वर जी बुद्धि दियो, ज्ञान दियो, तंदुरुस्ती दियो, अंग संग सहाय हो मेरे पर, मेरे प्यारे प्यारे सखा जी अंग संग सहायक हो, मेरे बंधु जी, मेरे माता पिता जी। हे गुरु जी, मैं अपने पिता का कभी भी प्यार नहीं पाया गुरु पाजी, तुसी मेरे पिता जी हो। कभी भी मैनू गल नहीं लगाया मेरे पिता जी ने गुरु पाजी, तुसी मैनू अपने गल ला लो गुरु पाजी। तुहाडे नाल जफ्फी मारने का बहुत दिल करता है गुरु पाजी, अपने दुखड़े सुनान का बहुत दिल करता है महाराज जी, बहुत दिल किनू अपने दुखड़े सुनाओ गुरु पाजी। तुसी मेरे पापा हो, मैं तो नहीं सुनावांगी गुरु पाजी, तुसी मेरे पापा हो। मेरा दे साईं हो तुसी। हे महाराज जी, तुसी अपने बच्चों को आशीर्वाद दियो महाराज, मेहर भरिया हाथ सिर उत्ते रखो महाराज जी। मेरी नौका भी डूबती जा रही है महाराज जी, मेरी नौका भी तार दो महाराज जी, मेरी नौका भी तार दो। हे गुरु महाराज जी, मेरे पिता परमेश्वर जी,
धन धन गुरुपा जी, धन गुरुपा जी। मेहरा का देसाई, मेहर करो, मेहर करो। गुरु महाराज जी माफ करो, कोई गलती हो गई होवे संगता जी, माफ करो, माफ करो। गुरुपा जी मैनू माफ करो, मैं इमोशनल हो गई हूँ गुरुपा जी। गुरुपा जी मैं और कुछ बोल नहीं पा रही हूँ गुरुपा जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ गुरुपा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय ओम गुरु। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती भी है। गुरुपा आपको और गुरु नानक देव जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। सत्संग करने में अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। आज शुक्राने का भी दिन है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं सत्संग सुनते सुनते रोटी बना रही थी, तभी सभी के द्वारा मैं सुनती हूँ कि रोटी में ओम के दर्शन हुए, तो मैं भी सोच रही थी तो मैं सॉरी संगत जी, मैं भी सोच रही थी सभी को दर्शन ओम के हो जाते हैं रोटी में, हमें क्यों नहीं होते ओम के दर्शन। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी दिन रोटी बनाते बनाते हमें भी अंतिम रोटी में ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितने भी शुक्राना करूँ उतने ही कम है। आप गुरुपा दिल की पुकार बहुत जल्दी सुनते हो गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल 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 का शुक्राना गुरुपा। अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपा। हम सभी संगत जी के साथ साथ हम पूरे परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा मैं भी एक अरदास लगाई हूँ आपके श्री चरण कमलों में, जल्दी पूरी करवा दीजिए गुरुपा। अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा। बटरफ्लाई के रोज़ दर्शन होते रहते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। रात के समय मेरे घर में भी आने का शुक्राना गुरुपा। बटरफ्लाई के रूप में रात के समय मेरे घर में भी आने का शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और ये शुक्राना सत्संग मेरी माँ के लिए है, मम्मी के लिए। तो मैं उन्हीं का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ और गुरु जी के चरण कमल के सामने। इसलिए मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर संगत जी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में या बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, आप लोग भी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी माँ पिछले बहुत सालों से, तो जैसे 4-5 सालों से मेरी मम्मी को कुछ ऐसी नेगेटिव हावी हो गई थी जो वो पहले की तरह होती, तो वो पहले की तरह जैसे नटखट सी और चंचल सी, इधर उधर जाने वाली, जल्दी जल्दी काम करने वाली थी और सबसे हंस के बात करती थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। कभी इसके घर जाना कभी उसके घर जाना करती रहती थी। तो कुछ नेगेटिव, एक बार हम लोग जब उस पुराने घर से शिफ्ट होकर मैं और मेरा हस्बैंड अंकल अलग अलग घर में रहने लगे और मम्मी और मम्मी का फैमिली सब अलग घर में रहने लगे, तो उस घर में तो वो नया घर में कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया था मम्मी के ऊपर। तो मम्मी हंसना और बोलना भूल गई थी। हमेशा एक ही सोच में पड़ी रहती थी। कुछ भी बोलो तो वो फट से तो जवाब नहीं देते थे। जैसे कुछ बोलो तो एक ही जगह देखती रहती थी, जैसे उनको कोई होश ही नहीं है। उनको कितना झाड़ फूँक किए और मेडिसिन भी चलाए पर ऐसा कुछ असर दिखा ही नहीं हम लोग को। हम लोग बहुत परेशान थे संगत जी कि मम्मी पहले की तरह नहीं है बोलकर हम लोग आपस में हम सब सिस्टर बात भी करते थे। पर उसके बाद बहुत सालों के बाद मुझे गुरुजी ने अपने चरण कमल में साथ जोड़ लिए और जब से गुरुजी मेरे घर आए हैं, जब से मुझे गुरुजी ने जोड़े हैं अपने से, उसके बाद में मेरी लाइफ तो चेंज हो ही गई संगत जी। मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरे सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका सब चेंज हो गए। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं ना, घर का एक सदस्य भी अगर मुझसे जुड़ जाए तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो वैसा ही हुआ संगत जी। जब मैं घर में शुक्राना सत्संग करने लगी तो मेरी मम्मी आना नहीं चाहती थी, पर उनको ज़बरदस्ती छोटी सिस्टर लेकर आती थी। और उसके बाद धीरे धीरे पहले ही तो इम्प्रूव नहीं हुए, पहले ही ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मम्मी की हालत में सुधार। धीरे धीरे जब महीने साल बीतते गए तो मम्मी का हालत पहले से बहुत बेटर हो गई है। और आजकल तो वो हंसने भी लगी है, बोलने भी लगी है। सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी के यहाँ सत्संग आती है मम्मी और उसके बाद लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पीने लग गई, खाने लग गई। उसके बाद मम्मी हालत में तो बहुत थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा सुधार हो गई है। मम्मी अभी ज़्यादा बोलती भी है और हंसती भी है। पहले तो वैसा कुछ नहीं करती थी, एक ही जगह पड़ी रहती थी। उसको खाने के लिए भी मम्मी खा लो बोलना पड़ता था, मम्मी नहा लो ऐसा बोलना पड़ता था। एक ही जगह जब बैठती जो बैठ जाती थी बस बैठी रहती, जब तक उनको डांटते नहीं थे, उसको जबरदस्ती नहीं करते थे, वो उन जगह से हिलते ही नहीं थे।
तो अभी मम्मी यहाँ गुरुजी के सत्संग में आती है और पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। आजकल हंसती भी है और हम लोग से ज़्यादा बातें भी करने लगी है, पहले की तरह हो गई है। सब गुरुजी की मेहर है संगत जी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर में जब सिस्टर गुरुजी के साथ सामने बैठकर बोल ही रही थी, रो ही रही थी, अरदास कर रही थी, बोल रही थी कि गुरुजी सब बोलते हैं आपके स्वरूप जिस घर में होता है उस घर में नेगेटिव नहीं होते, आप भी बोलते हो, तो मेरे घर से नेगेटिव दूर क्यों नहीं करते हो, मेरे मम्मी को ठीक क्यों नहीं कर देते हो, पूरी तरह से घर में नेगेटिव है, हम लोग को भी पता चलता है मम्मी के अंदर भी कुछ नेगेटिव है, आप उनको भी क्यों दूर नहीं करते, बोलकर रो कर अरदासी कर रही थी। ठीक उसी टाइम घर का बाथरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया अपने आप और अंदर से पानी नल खुला हुआ था। तो जब मेरी सिस्टर अरदास करके जैसे ही बाहर निकली तो मम्मी पहले वो अरदास कर रही थी, तो मम्मी आकर बोले कि देखो ना बाथरूम में कौन है, अंदर से दरवाज़ा बंद है, को खोल ही नहीं रहा है और बोल भी नहीं रहा है, पानी भी नल भी पूरा खुला। मैंने तो नल थोड़ा धीरे ही खोला था पर अभी तो ज़ोर से नल चालू हुआ है। तो सिस्टर भी कितना दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मम्मी भी की, तो खुल ही नहीं रहा था, जबकि वो दरवाज़ा इतना हल्का है संगत जी, लॉक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बोली कि दीदी घर में आपका बेटा है, तो मैंने बोले कि हाँ है। वो मुझे लगा कि वो आया होगा, बाथरूम गया होगा, तो वो घर में है, तो पता नहीं घर में कौन आया कि दरवाज़ा बंद अपने आप बंद हो गया और खुल ही नहीं रहा है, अंदर से बने। कितना हम लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें पर हो ही नहीं रहा है। तो मैं फिर गुरुजी को बोली कि गुरुजी आप चलिए मेरे साथ और देखिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो मुझे अंदर से जैसे फील हुआ कि गुरुजी मेरे साथ है, और जैसे हम गए उन लोग आधा घंटा से वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी पर खुल ही नहीं रहा था। लॉक होने का तो कोई चांस ही नहीं संगत जी, क्योंकि ना कोई जंग लगा था, ना दरवाज़ा इतना भारी है, ना दरवाज़ा को कोई जैसे कील उल ढीला है, ऐसा कुछ नहीं था। जो दरवाज़ा लूज होके भी जैसे लॉक होता है अपने आप, तो वैसा कोई था ही ना, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैं जैसे गई तो मम्मी दरवाज़ा खोल ही रहे, तो मैंने मम्मी को साइड की और मैंने गुरुजी को बोले देखिए गुरुजी क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने ऐसे दरवाज़ा छुआ तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया मेरे जाते ही। तो मुझे जैसा वो वेव्स जो हवा बाथरूम से आ रही थी, तो फिर मुझे गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये डाला कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेगेटिव था। गुरुजी जैसे हम लोग कितने सत्संग में सुने थे कि गुरुजी बाथरूम में नेगेटिव को भी दूर कर देते हैं। बाथरूम में गुरुजी और नेगेटिव आपस में लड़ते हैं और गुरुजी बाथरूम में ही नेगेटिव को दूर कर देते हैं और वो बाथरूम का वो फ्लैश करके पानी के जरिए वो नेगेटिव को भगा देते हैं। तो मुझे ये सब दिमाग गुरुजी ने ही डाला। तो जैसे दरवाज़ा खुला मुझे वैसा ही मतलब थॉट्स आया और मेरे मुंह से वैसा ही निकला कि डरने की कोई बात नहीं है। जो तू अरदास कर रही थी गुरुजी ने तेरी अरदास सुन लिया और गुरुजी आके वो नेगेटिव को तेरे घर से दूर कर दिया। तो हम सब गुरुजी का शुक्राना कर ही रहे थे। तो मेरी नज़र एक नींबू और जो गिलास में जैसे बोलते हैं कि घर में अगर कोई नेगेटिव होता है तो वो नींबू अपने आप वो गिलास के पानी के सतह वो नीचे गिर जाता है, तो ऊपर उठता ही नहीं है। तो मेरे कितने महीने से मेरे घर में वो नींबू जैसे मम्मी को उतार कर घर में घुमा कर वो नींबू गिलास के पानी में डालते थे तो नीचे ही जाता था, नीचे क्योंकि नेगेटिव था मेरे मम्मी के ऊपर तो नीचे ही जाता था संगत जी। तो उस दिन जब हम लोग शुक्राना कर ही रहे थे तो मेरी नज़र वो नींबू में पड़ गई, तो नींबू देखा कि वो अपने आप ऊपर उठ गया था संगत जी।
तो मैंने अपनी सिस्टर को, मम्मी को दिखाई, देखा गुरुजी आपके घर से नेगेटिव दूर कर दिए। देखिए जब तो सिस्टर बोल रही थी नहीं सुबह तो नीचे ही था दीदी, अभी आया है ऊपर। तो इसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसा होता है गुरुजी का मेहर, वो खुद आकर मेरे घर से नेगेटिव, मेरे मम्मी के घर से नेगेटिव दूर कर दिए। और वो नींबू का ऊपर उठना और वो जो हवा की तरह जो मेरे शरीर में आना और जो मेरे दिमाग में था वही मैं बोलना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी खुद आकर नेगेटिव को दूर भी करते हैं। उसके बाद से तो मेरी मम्मी और ज़्यादा अच्छी हो गई, और ज़्यादा हंसने बोलने लग गई है। गुरुजी की कृपा से वो पहले की तरह ही हो गई है संगत जी। पर इतना बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले तो ऐसा हो था ही नहीं। बस गुरुजी से यही मेहर है कि मेरे घर में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो मेरे भाई का, तो वो भी दूर कर दे। जो मेरे प्रॉब्लम है मेरे भाई, मेरे मम्मी का, मेरी, हम सब का वो प्रॉब्लम दूर कर जल्दी कर देंगे संगत जी। बस गुरुजी बोला है सब्र रख, सब चंगा होगा बोले। तो हम लोग बस गुरुजी का मेहर का गुणगान ही कर सकते हैं, उनके ब्लेसिंग का गुणगान ही कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुजी खुद आकर मेरी मम्मी के घर से नेगेटिव दूर कर दिए संगत जी। इसके लिए गुरुजी आपको तहे दिल से शुक्राना। ये शुक्राना मेरे मम्मी के लिए था, जो गुरुजी बोलते हैं सच शुक्राना सत्संग तेरा मम्मी का करना, माँ का करना है, तो मैं उसी के कर रही हूँ संगत जी। अभी इसके लिए मैं अभी गुरुजी के पावन मंत्र से अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ अगले नेक्स्ट सत्संग के लिए। इसके लिए मैं पावन मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी अगर जो सत्संग सुन रहे हैं उन आंटियों का भी, उन संगतों का भी नेगेटिव से दूर कर दीजिए, जो प्रॉब्लम है दूर कर दीजिए, जो मैं सुन रही है। और जो आंटी मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं तो उनके भी घर से तुम नेगेटिव दूर कर दीजिए, उनको भी बरकती दीजिए संगत जी को, और उनकी जो इच्छा हो पूरी कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।